Namaskar and welcome to Sansad TV. I am Rajiv Kumar Singh and you are watching House Highlights, the program where we bring you a concise snapshot of the proceedings in the two houses of Parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Before we get into the details, let us first take a quick look at the headlines. Developed India goal drives government strategy. Finance Minister Nirmala Sitharaman replies to the discussion on the budget in the Lok Sabha. Budget focuses on India AI mission, infrastructure and tourism, stresses the FM. Discussion on Union Budget 2026-27 continues in the Rajya Sabha. Ruling side says the budget is youth-focused and growth-oriented. Opposition questions lack of employment opportunities and low allocations for education and health. And target to achieve nationwide Wi-Fi connectivity by 2030. Communications Minister Jyotiraditya Scindia replies in the Lok Sabha. 2.14 lakh Gram Panchayats connected through optical fiber, emphasizes Scindia. Let us now take a detailed look at the proceedings in the Lok Sabha on Wednesday, the 11th day of the budget session. Finance Minister Nirmala Sitharaman replied to the debate of the Union Budget 2026-27 in the Lok Sabha on Wednesday. Let us first listen to what she said about the textile parks. We are willing to work with the states so that this mammoth higher education center can be propped up and therefore students can go there, come out as entrepreneurs, get to doing businesses. So if we've done these two in the major education-related activity, health-related activity, we've also openly said that mega textile parks, we are willing to work with states, particularly looking at industrial textiles, looking at textiles which are going to be new age, which are now becoming a part of manufacturing in industries, whether they manufacture a car, where the safety cushion which comes in is all completely made out of industrial textiles. So these kind of new age textile requirements can also be produced. The Finance Minister emphasizes that while Centre's capex is at rupees 12 lakh crore, in effect with states and UT's grants, it rises to rupees 17.1 lakh crore. The effective capital expenditure, although I said capital expenditure is 12.2 lakh crores, the effective capital expenditure, which includes grants that I give to the states as well, is 17.1 lakh crores, which is 4.4% of the GDP, which goes only to build India in the states and everywhere else, union territories and so on. So states and union territory put together for the capital expenditure, 17.1 lakh crore is being given effectively. The FM assured that 41% share of taxes has been devolved to the states. She highlighted that the centre will devolve over rupees 25.44 lakh crore this year. 41% it is that we have transferred to the states. We have not reduced any states transferred devolvable tax which has to go. And that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. Itna paisa states ko jayega is saal, aane wale saal, 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है, उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है.
Later, in her reply, Nirmala Sitharaman attacked the TMC government of West Bengal on GST and false claims related to East-West freight corridor. स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। I have announced new dedicated freight corridor दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। The finance minister also replied to LOP Rahul Gandhi's question on data and data centers. Hey, please listen, I'm talking about LOP. Listen, you will be keen to know. AI और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं। सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले। उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान। Earlier, members from different political parties took part in the general discussion on the Union Budget 2026-27, while the ruling alliance members supported the budgetary recommendations, saying it was a reflection of New India. The opposition members countered the government on the trade deal with the United States of America. Let us listen to some excerpts from the discussion. अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आता हूं। मध्यम वर्ग को हर साल टैक्स में बदलाव नहीं चाहिए, उसे स्थिरता और भरोसा चाहिए। इस बजट ने टैक्स की दरें नहीं बदली, टैक्स व्यवस्था का स्वभाव बदला है। मुकदमेबाजी कम हुई है, अनावश्यक दंड खत्म हुए हैं और अनुपालन सरल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अनिश्चितता टैक्स से ज्यादा महंगी होती है। बिहार के छोटे राज्य, छोटे कस्बे का युवा आज सर्विस सेक्टर में, प्रोफेशनल जॉब्स में और डिजिटल अर्थव्यवस्था में है, और बजट उसे यह भरोसा देता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित है, और यह भरोसा एनडीए सरकार से आता है। अध्यक्ष महोदय, भारत का सबसे बड़ा रोजगार दाता और कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बल्कि इस देश का छोटा और मझौला उद्यमी है। यह बजट एमएसएमई को भाषण में नहीं, संरचना में ताकत देता है। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं, सबकी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं: ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूं कि इंडियन वुमेन आर बॉर्न इकोनॉमिस्ट विद रेयर फोरसाइट,
and are natural accountants by instinct, तो कहना गलत नहीं होगा। ये बजट सर्व मंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। During the debate on the union budget, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said that the LOP needs to authenticate whatever he had said. He also emphasized that Narendra Modi is the most popular Prime Minister the country ever. मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया है, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस connotation. Can you take it? I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, अब सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है, 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है, भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। At 11 a.m., the proceedings of the Lok Sabha commenced with the question hour. Railways Minister Ashwini Vaishnav replied to questions related to Vande Bharat trains in Maharashtra and also on Buddhist circuit. Let us listen to his replies on the questions. महाराष्ट्र में बजट भी बहुत ही एक पहले कभी इतना बजट नहीं दिया गया था, वैसा बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए दिया है। महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि अगर यूपीए सरकार के समय से कंपैरिजन करें तो यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, आज 23,926 करोड़ रुपए का बजट है और करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए जो कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, औद्योगिक नगरियों को जोड़ते हैं, साथ ही साथ जो बड़े एजुकेशन हब बने, जो बड़े टेक्नोलॉजी के हब्स बने, उनको भी जोड़ते हैं। जो पुणे, अहिल्यानगर, इन सब क्षेत्रों के बारे में माननीय सांसद महोदय ने जो आज विषय रखा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को जानकारी देना चाहूँगा कि पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का काम अभी चल रहा है और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशंस, कई शहरों के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत डिटेल में जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे मान लीजिए नासिक का कुंभ का काम है, तो नासिक के कुंभ में किस तरह से कैपेसिटी बढ़े, लोगों का आना जाना सुगम हो सके, एक एक करके नासिक स्टेशन से पहले 2 स्टेशन, नासिक स्टेशन के बाद में 2 स्टेशन, इन सब पे डिटेल में काम चल रहा है। अहिल्यानगर के लिए भी नए प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। बहुत तेज़ी से काम महाराष्ट्र में चल रहा है माननीय सांसद। कई ऐसे शहर हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट के, वहाँ पे ऑलरेडी वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और अब तो इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए
बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर की भी घोषणा की है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगी और उसमें बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े हुए कई शहर भी इसमें शामिल हैं। Minister of State for Communications Dr. Chandrasekhar Pemasani, replying to a query, said that over 630,000 villages in India now have 4G services, while the 5G services have been rapidly extended to over 5 lakh villages in the country. We have around 640,000 villages. Out of those, 631,000 villages, other than 10,000 villages, the entire country has been covered with 4G. This includes both private players as well as the BSNL. As far as BSNL is concerned, we launched with 100,000 towers with indigenous technology throughout the India. Wherever there is no techno-commercial viability for the private players, that is where BSNL priority has been. And the remaining 10,000 villages are also being covered in 4G saturation projects, sir. So hopefully in the next few months, the entire country will be covered with 4G services. Not only that, majority of the country, almost 5 lakh villages have been covered. Approximately 5 lakh villages have already been covered with 5G services, sir. This is the fastest 5G rollout in the world, sir. One of the fastest 5G rollout in the world, sir. Let us now have a look at all that took place in the Upper House on Wednesday, the 11th day of the budget session. Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi replied in the Rajya Sabha to a question related to increasing public awareness about nutrition. She said that campaigns such as Poshan Ma and Poshan Pakhwada are being conducted for this purpose. The government is committed to a malnutrition-free India through Anganwadi centers. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2018 से पोषण जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण माँ और पोषण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से मुख्य रूप से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पोषण अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता तथा व्यवहार परिवर्तन से जुड़े प्रयासों को लागू किया गया है, जिससे हम लगातार सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह और मार्च और अप्रैल में पोषण पखवाड़ा का आयोजन कर जन जागरूकता बढ़ाते हैं। सामुदायिक सहभागिता इसमें बनी रहे, लोग इससे जुड़े, इसके लिए लगातार हमारा कार्यक्रम चलता है और इसमें लगभग 18 मंत्रालय और विभागों के साथ कन्वर्जेंस के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार, व्यवहार, एनीमिया, स्वच्छता, साफ सफाई को लेकर थीम आधारित, थीम बेस्ड ये कार्यक्रम चलते हैं ताकि समग्र स्वास्थ्य और पोषण की हर लोगों को जानकारी मिल सके। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 2018 से अभी तक लगभग देश भर में 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां इन कार्यक्रम के माध्यम से हुई है। और पिछले वर्ष यानी 17 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान यानी 8वें जो पोषण माह का 8वां संस्करण था उसकी शुरुआत की और उसके माध्यम से भी लगातार ये हमारा प्रयास है कि स्वस्थ इस अभियान के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़े और जन जागरूकता हो और लोगों को ज़्यादा इसकी जानकारी मिल सके। The general discussion on the Union Budget 2026-27 continued for the third day in the Rajya Sabha. The ruling side described the budget as youth-focused and one that accelerates development. The opposition, however, said and raised concerns over the lack of adequate provisions for employment opportunities, education and health. Former Prime Minister H.D. Deve Gowda praised the budget. Let us listen to some excerpts of the discussion.
दूसरे देश कर्ज में डूबे हुए हैं, भारत अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए हुआ है। और ऐसा जो हम कह रहे हैं कि 7% की हमारी जो उससे अधिक विकास की जो दर है, उससे हम तेजी से जो आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे पास एक ऐसा नेता है जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आज चिंतित थे और आज उस पर काम कर रहे हैं। और वो नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। ये उन्हीं की दूरदर्शिता का आज परिणाम है कि 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। दीर्घकालीन घाटे से निकलकर आज हम मजबूती से संतुलित वित्तीय स्थिति तक पहुंचे हैं। अस्थिरता के दौर से निकलकर आज हम नीतिगत स्थिरता पर पहुंचे हैं। आज हम मदद मांगने वाले देश की छवि से बाहर निकलकर हमने वैक्सीन मैत्री के रूप में विश्व को देने वाले देश के रूप में अपनी छवि को बनाया है। Economy cannot grow if entrepreneurs live in a fear of compliance mistakes. Governance must be firm, but it must also be fair. However, sir, as a senior member of this House, I must also place before the government some constructive concerns. Growth alone is not enough. Employment must be as the center of our policy thinking. Manufacturing and MSMEs generate jobs not only when supported by skilling local ecosystem, affordable credit and predictable regulations. We must ask ourselves honestly, are we measuring success only by investment announcements or by dignified job created for our youth, especially in smaller towns and rural India? मान्यवर, ये एक बजट केवल एक आय और व्यय का विवरण नहीं है, ये एक देश के भविष्य की योजना है। और ये बजट जो है वो सुधार और कार्य का बजट है। इसमें महोदय, इकोनॉमिक सर्वे ने जो हमें विश्व के देश की आर्थिक स्थिति और का सही आकलन किया है। आज दुनिया के ज़्यादातर देश युद्ध, महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वहीं भारत एक अलग खड़ा हुआ है और अपनी विकास की दर को लगातार बनाए रखा है। हम 7% की विकास की दर को बनाते हुए इस पूरी अपने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से वित्तीय अर्थव्यवस्था को कायदे से बना के हम इस देश को आगे विश्व के अंदर एक मजबूत स्थान प्रदान कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा भारत आज विश्व का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी का देश बन के निकला है। महाराष्ट्र के लिए ये बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। ये बजट महाराष्ट्र के परिवहन और विशेष रूप में रेलवे क्षेत्र में क्रांति की नींव रखने वाला ये बजट कहूँगा तो गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र में रेलवे विकास के लिए इस बजट में रिकॉर्ड 23,926 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए कार्य प्रगति पर है। इनमें नई रेलवे लाइनों का निर्माण, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने वाले कार्य शामिल है। पिछले 12 वर्ष में महाराष्ट्र में लगभग 2,400 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई है और 3,744 किलोमीटर रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण ये पूरा हुआ है। So, Shikshit Bharat is the foundation of any developed nation, and our government has earmarked 1,40,000 crore for education. Sir, day before yesterday, I was listening to some speaker. I don't know why and how, he said that the budget for education has been decreased. In fact, it has been increased by 8% over last year. And sir, 42,000 crore for Samagra Shiksha, 7,500 crore for PM Shri, and sir, 15,000
Content creator labs will be set up in our schools so that we are leading in the orange economy. And sir, 5 new university townships are proposed so that there is connect between industry and academia. And sir, 7,150 crore has been earmarked for EMRS, Eklavya Model Residential School, ensuring that tribal students are never left behind in this race for national progress. Truly, sir, sabka saath, sabka vikas. Sir, this budget accelerates the new education policy, NEP 2020 agenda, and ensures that no child, no youth, no dream is left behind. That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with the proceedings of the Parliament during the budget session. Thanks for watching Sansad TV.